Let me just tell you that first we will start with a little bit of theory, and after that we will go on to doing some practical problems. Today's class will be based upon the numbers related to all the different types of numbers. Like we were it's a continuation of the previous class. Like I have told that we were discussing few numbers in the previous class, that only we will continue. But before that, we were like previous class only, we had begun with a little bit of finding out the output and everything. We will continue with that approach till your exams, because we have seen people scoring good at programming and failing to score good marks in a little bit of easier area, that is called your theory. So now we will continue with a little bit of theory, because I know no one studies theory apart from me forcing you to study. So like where we had left this PDF, we will continue to uh, start from there only. So we had finished our discussion till, yeah, we had finished our discussion till 123. Now we'll continue with 124. So I guess the PDF is visible to everyone. Any one of you can mute and say yes. Yes. Yeah. So the first question is, analyze the following program segment and determine how many types of the body of the loop will be, how many times the body of the loop will be executed. So you guys solve and tell me how many. I know the answers are there, but you need to actually think while solving the program. The process is x is equals to 5, y is equals to 50. Then while x is greater than or equals to y, and the logic says y is equals to y by x, and every time it is going to print y. So first time what is it going to print? Can anyone tell me? पहले 10 प्रिंट होगा. कैसे प्रिंट होगा? y 50 है, x 5 है, तो 50/5 10. 50 by 5 10. Y is हम्म. 50 and y is equals to 10. हम्म. So is x is greater than equals to y? लेस है. Less than or equal to y? हाँ, 5 Yes. is less than equal to 10. Yeah. So वापस फिर नेक्स्ट टाइम वापस क्या प्रिंट चलेगा. होगा? 10/5 सूर्यांश नेक्स्ट 3. टाइम क्या प्रिंट होगा? हम 2 प्रिंट होगा. हम 10/5 y का नया वैल्यू 10 है, सो 10/5 तो दोनों बार मतलब लूप कितनी बार चलेगा? 2 टाइम्स. लूप 2 टाइम्स चलेगा. मुझे नहीं समझ आया श्रेनु, लूप 2 टाइम्स कैसे चलेगा, मुझे समझाओ थोड़ा. पहली हम बार चला था 50 भाई, और जब फर्स्ट टाइम हुआ था तब 50/5 आया था और आउटपुट 10 आया था. फिर चेक हुआ, कंडीशन मीट हुआ है, एक्सेस मतलब 5 इज लेस देन 10. फिर वो वापस रन हुआ दूसरी बार और प्रिंट किया y2. फिर अब x ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन मीट नहीं कर रहा, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, तो वो एग्जिट हो गया. तो 2 ही बार चला था लूप. Yes, good. Chalo, well done. Now let's focus on 125. 125 says, analyze the following program segment and determine how many times the loop will be executed and what will be the output of the program segment. It says int k is equals to 1, I is equals to 2. Now can anyone tell me plus plus I is postfix or prefix? prefix. Prefix, yes, good one. While plus plus I means prefix means it is going to increment itself first and then it's going to use its value. And postfix means it increments itself but it uses its previous value first, right? So while plus plus I is less than 6, k into equals to I means k is equals to k k into I. into i. Yeah, and system.out.println k. So तो पहला basically, वैल्यू 3 होगा k का. हाँ. because plus plus I, तो 3 हो जाएगा. 3 is less than 6. Yeah, the condition is getting fulfilled. So k is equals to k into I. So 1 into 3 is equals to 3. So first value is 3. Can you tell me the second value of it, Suryansh? Next two values मुझे सूर्यांश बताएगा. हम 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस प्लस है
4 हो जाएगा, 4 होके प्रिंट भी 4 ही होगा, राइट? हाँ, फिर उसके बाद और एक प्लस मैम प्लस है, 5 हो जाएगा। 4 कैसे प्रिंट होगा? k इक्वल्स k इंटू आई, तो k का जो प्रीवियस वैल्यू 3 था, के तो इंटू आई नहीं, इंटू 4 क्या? k इंटू इज इक्वल्स टू i है ना? हाँ, तो k इज इक्वल टू k इंटू आई हुआ वो, तो मतलब तो मैं लास्ट वैल्यू इसीलिए 3। सूर्यांश को मैं पूछ रही थी ना कि 4 प्रिंट होगा कि नहीं। यही तो, डोंट गो बाय द मैम आंसर्स के रिटन। इंटू इज इक्वल टू आई, मतलब के इज इक्वल टू के इंटू आई होता है। हाँ, k is हाँ, equals पता to नहीं। k into I. So means the value of the k is getting changed, right dear? First time the value of the k is 1. So we are multiplying it by k is equals to k into I, right? So 1 into 3. So we will print 3. Next time the value of k is what? Now the revised value of k is 3. So now next time what it will be print? 3 into 4. So what it will actually is going to print? It's going to print 12 dear and not 4. And your फिर उस Shinuj is right. You're getting my point? K is equals to K into I means K's previous value is 3. So it will multiply it by 3 into 4. Right? Suryansh, got it clear? यस। So can you now tell me the next value of K? फिर हो जाएगा 12 इंटू 5। 12 into 5, yes. So what is तो going to print? वैल्यू ऑफ 6. के इज 60। Yeah, value of K is 60. And what is it going to print? It is going to, first time it is going to print what? And second time it's going to print what? Can anyone tell me? पहले 3 12। प्रिंट प्रिंट क्या होगा, होगा? फिर मेरे को आई एम कोई सॉरी, दोनों में 3। से कोई बताएगा प्रिंट क्या होगा? फाइन, प्रिंट कितनी बार होगा और क्या होगा? 3 बार हम प्रिंट होगा, एक लाइन में 3 होगा, नेक्स्ट लाइन में 12 होगा, उसके बाद 60 होगा। Suryansh, you agree with it? हम How many times have I told you, अगर लूप के बाद में अगर ब्रेस नहीं खुला हुआ होगा तो we will consider only one statement within the loop. अब मुझे कोई बताएगा ये लाइन सुनने के बाद कि क्या प्रिंट होगा? 60। सूर्यांश, यू अग्री दैट कि खाली 60 प्रिंट होगा? समझ नहीं आया क्या बोल रहा। या समझाती हूँ मैं, हाँ, चलो। पर टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ ऐसा आउटपुट दिया हुआ, उसमें जरूरी नहीं है ब्रेस नहीं खोला है, ऐसा दिया हुआ है। आउटपुट नॉर्मली आ रहा है, मतलब 3 लाइन में ऐसे Are प्रिंट। they will actually going to show you for the purpose of explaining you. They will show you all the level of output. All the level of output for your explanation purpose. But for the answer, as an answer, what will be the output of the program segment? Then your नहीं, वो answer will प्रॉपर be. आंसर लिखाया था राइट में, राइट So साइड then में it is फर्स्ट। basically wrong. I have always told you, when it comes to the output questions, you don't have to go by the answers which they have actually printed, because many a times it so happens that the answers they have printed, they may go wrong with what actually the answer is in case of computer. You can't trust, you can't go by the textbook in case of computer, because you can't go by the book, because every person has their own logic. You have your own logic, I have my own logic, Suryansh has his own logic. Everyone will write their answer in on the basis of their own logic, right? But the universally accepted logic is actually the true logic. If you have not opened the brace, it means that the Java is going to only consider one statement within the loop. So when it is going to consider only one statement within the loop, then it is only going to consider k into is equals to I within the loop. Then the system.out.println k is written outside the loop now. Now when it is written outside the loop, it is going to execute only once. It's not going to execute the number of times the loop is going to execute. The loop is going to execute thrice, but the output will on the screen will not be printed twice. You can see they have also written the right answer. Value of the k is equals to 60, and that is only going to get printed on the screen as well. K is going to be printed as 60, and 3, 4, and 5 is the value of the I which is getting incremented. I'm saying, so it may so happen that the textbook may give you a wrong answer. It's not always that you should always go by the book. Now let's understand this, since we have not understood it. See, I plus plus is less than 6. So what will happen? First I will be 3,
incremented, and then it is less than 6, then it will be k's value is 1, so k is equals to 1 into 3, so it will be 3, but it will not get printed because again the brace question comes over here. No, there is only single line within the loop, so value will be 3 but it will not get printed. Final value of the k will be printed when it will exit from the loop. So now next time it will be 4, then it will be 4 into 3 because k is equals to k into I, so it will be 4. K's value was previously was 3, so 3, and now I's value is 4. So 3 into 4, it will be 12, and that will again not be printed because again the condition is getting fulfilled. So वापस ऊपर जाएगा, it will be 5, 5 is less than 6, yes, वापस वो क्या करेगा, 12 into 5 60 करेगा. अब वापस जब इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू 6 होगा, 6 is not less than 6, so it will exit the loop and then it will print only the value of 60. And number of times the loop will execute, it will going to execute 3 times. Now is Suryansh clear? Yes, ma'am. Yeah, so next time whenever you're going to give the output, you're always going to consider whether the brace is open or not. In case of if conditions also, only when you don't open the brace, only one line is considered within the loop. Okay. So now let's focus on the next output which is given on the screen. What will be the output of the following programming segment? Int I is equals to 1 while I plus plus is less than equals to 1. Again it is said I plus plus system.out.print. It is in a system.out.print, so it is going to display the output within a single line itself. Ln means next line, so output is going to be displayed within the single line along with the spaces which they have mentioned while printing. Okay, so it's a postfix question. So can I get my first value from Shinuj? 1 I प्लस प्लस के समय 1 है जब कंडीशन One is चेक हो less रहा है than or equal to 1. Yes, one is और less तब than. 1 है. हाँ, तो 1 है तो वापस I प्लस प्लस होगा, तो वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, बट प्रिंट क्या करेगा? 3 क्योंकि आई प्लस प्लस में मतलब वो इधर भी वापस आई प्लस प्लस हो रहा है लूप के अंदर और आई वापस मेंशन हो रहा है तो 3 करेगा प्रिंट. Yes, it will print 3 because first it is I plus plus, so it will increment itself, so it will become 2, and then it will go inside, मतलब वापस I plus plus करेगा तो मतलब वैल्यू 3 हो जाएगा करके, और प्रिंट क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा. हाँ Okay, and वापस and 3 is not less than or equal to 1, so what will it do, it will basically not fulfill the condition एग्जिट. will become false, and वो क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और वो वैल्यू लिखेगा. तब क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी चेक कर रहा है ना, I प्लस प्लस तो हो ही गया, तो मतलब वैल्यू 4 हो ही गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो I का वैल्यू प्रिंट करेगा तब वो 4 प्रिंट करेगा. तब 4 होगा 4, तो 3 और 4 प्रिंट होगा. 3 और 4 प्रिंट होगा. सूर्यांश समझ आया कि मैं रिपीट करूं? मैम समझिए. समझ गया ये वाला? देखो ये करना इम्पोर्टेंट है, आई नो कि मैं ये क्वेश्चंस थोप रही हूँ तुम लोग के ऊपर, बट ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इस एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करना है. फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग सेगमेंट. देखो हम लोग कभी भी while लूप जब भी लिखते हैं, जब do while लूप whenever we write the do while loop, basically we write the condition after the braces closed, right? We write the condition after the braces closed. Here is my brace, यहाँ से मेरा condition close हो रहा है, मतलब वहां पे लिखते हैं और वहां पे semicolon भी देते हैं. But in case of while loop we don't give semicolon. Okay, in case of if also, when we write a condition, we after closing the brace we don't अगर give a सेमीकोलन दे दिया तो वो तो नल लूप हो गया क्योंकि वो null तो loop हो एग्जीक्यूट गया, ही नहीं means होगा. it is not going to run anymore. So that's why this entire thing written within the brace is not going to get executed only. So that is one thing, one big error which has been done in this program. Okay, now CTR is equals to 1 and sum is equals to sum plus A, and A is equals to CTR is equals to CTR plus 1. Now वो हर टाइम 2 इज नॉट इक्वल टू 10 करेगा क्योंकि पहली बार तो वो 1 डिफॉल्ट वैल्यू लेगा शायद,
फिर वो CTR इक्वल टू 1 सम इक्वल सम प्लस से फिर वो 1 + 1 2 होगा, फिर हर बार वो वापस 1 + जाएगा। 1 2 ही करेगा करके. हाँ वो 2 ही लेगा, Every वो हर time टाइम लेगा वाइल CTR is 2 going इज to be नॉट इक्वल टू initialized 10। 1. If they wanted, they should have initialized it outside the loop only, हाँ right, and not within the loop. So whatever the initialization part is, we keep it outside the loop while we are writing a while loop, right? So that's why from that point of view also, this initialization of CTR is equals to 1 is also wrong. Because every time it will run, every time it will initialize 1, and वो सिर्फ 2 ही check करेगा. इसके आगे तो वो check नहीं करेगा, because CTR equals to 1, sum is equals to sum plus a, CTR is equals to CTR plus 1. So every time CTR will be 1, and we will increment the CTR is equals to CTR plus 1. So it will be 2. So every time 2 is not equal to 10, yes, 2 is not equal to 10. So the loop will go on running, go on running, go on running. It will give an infinity. It will go on to until infinity, right? So there are two errors. One is semicolon, second is initialization. Okay, I hope everyone is clear. So we'll focus on the next output. What will be the output of the following program of the Java? Int x is equals to 50, y is equals to 5. While x is greater than or equals to y is equals to x by y. System.out.print y, comma. We have to always keep in mind the printing statement and whether there is ln written or not, because that is the key while giving the output. Okay, when they have asked you output, you have to see what is written, system.out.print or system.out.print ln. There is a trick where you may go wrong. Okay, so keep in mind that. And now can Suryansh tell me the output of this? हाँ मैम, y का फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा 50/5 50/5. = 10. Yes. फिर होगा y का वैल्यू इज 10 अगेन, सो 50/10, so y 50 is by equal to 10. 5. Yeah, 50/10. Yeah, 5. Then क्या होगा? फिर हम y का नया वैल्यू वापस 5 है, तो Hmm. फिर 50/5 वापस हो जाएगा, 50/5 वापस. वापस 10 हो जाएगा वैल्यू। Yes. वापस वैल्यू 10 हो जाएगा. हम फिर उसके बाद वापस ये फिर लूप उसके बाद वापस चलते रहेगा। हाँ 50/10 तो वापस 5 हो जाएगा. हम इन्फिनिट इंफिनिटी तक क्या प्रिंट करता रहेगा? 55 55 55 10 5 10 5 55 10 10 5 5 10 5 10 5 प्रिंट करेगा, राइट? हाँ, क्योंकि x का वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है, x X का 50 वैल्यू रहेगा। स्टैग्नेंट है. Yeah, हाँ because X का वैल्यू स्टैग्नेंट है. हाँ। Had I written a small change in this, had I written X plus plus over here, okay, किधर? after system.out.print statement within the loop, if I would have written X plus plus, what would have been the change in the output? Can any one of you tell me? x प्लस प्लस लिखता है इधर, तो फिर नेक्स्ट चेक होता 51 इज ग्रेटर देन क्या आता, 51 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, फिर आता y का वैल्यू क्या आता 51 Okay, बाई। okay, okay. One correction. It will be X is equals to X plus 5, not X plus plus. Do x this. I'm coming. X is equals to X plus 5 after system.out.print statement within the loop. ये भी इंफिनिटी में ही जाएगा। Yeah. So in that case, what would have been happened? In first case, it would have been again 50/5, so it would have been 10. Next case, it would have been 55/10.
So the answer would have come 11, right? Because the value of x would have been incremented by 5, right? हाँ So it would have been 55 by 10. So the value would have been 11. And the next time, what would have been? Next time, it would have been 60 by 11, 5 right? again. 60 by 11, and we would have got what? 5. 60 by 11, yeah, we would have got 5. We would have got 5. फिर 65 by 5 होता. 65 by 5 होता तो 13 होता. हाँ. So 13 would have been 70 by 13 होता फिर. 70 by 13 होता. वो वापस 5 देता. वो वापस 5 देता. फिर 75 by 5 होता. वो क्या देता? 15. 75 हाँ. 1 2, हाँ वो 15 देता आपको. फिर 80 by 15 होता. 80 by वो 15 होता. 5 देता. फिर 85 by 5 होता. मैम ये भी इंफिनिटी तक तो जाएगा. इक्वल टू का साइन अगर हटा दो तो एग्जिट हो जाएगा वहां पे लास्ट वाले पे. एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई जो है वो ग्रेटर देन वाई तक ही अगर करें तो मतलब जहां पे वो 5 से इक्वल हो रहा है वहां पे वो एग्जिट कर जाएगा, राइट? But yeah, this one is also running on to the infinity part only. नहीं, अगर इक्वल टू हट भी गया तो भी तो इंफिनिटी तक जाते ही रहेगा. कैसे? अभी हमारा 85 बाय समथिंग हुआ था करके जिसमें वो 5 आ 85 रहा by 5. हाँ. नहीं, 5 आ 85 रहा by था. 5. 85 by 5 था. ओके. y 5 था जो वाई डिवीजन में. 5 था. जैसे ही वाई 5 हो जाता आपका तो 5 वुड नॉट हैव बीन ग्रेटर देन 5. सो मैम y इज इक्वल टू 85 by 5 होता. वो y का वैल्यू स्टोर नहीं हुआ था. वो इक्वेशन हम बोला था. ओके. तो वो 17 आता शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, चलो कोई नहीं, ये भी इन्फिनिटी पे ही जाता. मतलब इसको ठोक रोकने का कोई वो वैल्यू नहीं है, फ्रेम के आगे है. तो कोई नहीं, चलो हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. इंट x इज इक्वल्स टू, इसमें भी हमें आउटपुट बताना है 129 में. इंट x इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 1, while i plus plus is less than 5. If I is equals to 2, continue. X is equals to x into y. X into equals to I means x is equals to x into y, right? See, now you will see the change in the answer. See, Suryansh, they were wrong over there and now they've corrected themselves. Matlab, oh sorry, they were right only over there. They are not displaying the output. Okay, it's basically like the previous one which we had done, where the value of I is postfix. Now, can anyone tell me the second iteration of this loop? सेकंड आइटरेशन. Not the first one. We can do the first, but who can do the फर्स्ट second? वाला 2 होगा. सेकंड वाला 3 होगा तो x3 ले लेगा. हाँ. तो सेकंड क्या होगा? आइटरेशन 3 होगा. फिर तो x3 हो जाएगा. फर्स्ट पे तो कंटिन्यू ही होगा. If I is equals to 2, continue. So it will, what it will do? It will basically skip. हाँ, फर्स्ट वाला तो आइटरेशन स्किप हो जाएगा. फिर वो First 2 वाला प्लस प्लस iteration skip होगा. होगा because if I equals to 2, so I plus plus, so I equals to 2. The condition will get fulfilled and it will basically skip स्किप. the iteration. Continue ये means गलत skipping the आंसर iteration. दिया हुआ. इधर इधर सिर्फ 12 तक आएगा क्योंकि i इज इक्वल टू 5 तो कंडीशन मीट. नहीं होगा. एक सेकेंड. It is less than 5, right? हाँ. It is less than 5, but जब भी कंडीशन चेक करेगा तब वो I प्लस प्लस कर देगा अपने आप को, राइट? तो I प्लस प्लस कर देगा मतलब क्या होगा कि मतलब I 5 होगा, राइट? पहले 2 आया वो स्किप हो गया. फिर 3 आया. क्या है? फिर वो 4. हाँ.
3 में क्या करेगा? 3 में it will basically do 1 into 3 because I is 1 and x is 3, मतलब x is ओ also हाँ हाँ हाँ, sorry, I is 3 and x is 1, so 1 into 3 करेगा, आई right? प्लस फिर प्लस next हो time रहा तो वो एक आइटरेशन पीछे चल रहा है, इसीलिए 12 into 5 लिया। हाँ, क्या समझ बोला गए। श्रीनुज? आई प्लस प्लस हो रहा है तो वो एक आइटरेशन अपने ही आगे ले रहा है, इसीलिए वो 12 into 5 कंसिडर हुआ। जब 4 आएगा आई में तब वो 4 प्लस प्लस हो जाएगा, फिर वो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आया, समझा? पहले 2 आया आई का वैल्यू, वो फिर स्किप हो गया, फिर हुआ 2 प्लस प्लस, फिर हम्म वो 3 आया, फिर 1 into 3 हुआ 3, फिर 3 प्लस प्लस, फिर वो 4 आया पर अंदर में, तो 4 into 1 3 into 4 12, फिर वो 4 प्लस प्लस किया, 4 प्लस प्लस इज लेस देन 5, फिर अंदर में चेक हुआ तो वो 5 हो गया, तो वो 12 into 5 60 दे दिया, फिर एग्जिट हो जाएगा क्योंकि फिर 5 इज लेस देन 5 वो करेगा चेक, तो 60 ही होगा करेक्ट आंसर। हाँ 60 होगा करेक्ट आंसर। सूर्यांश समझ आया कि नहीं आया? नहीं मैम, नहीं समझ। नहीं समझ आया ना? मुझे भी नहीं समझ आया। चलो समझते हैं। int x is equals to 1 है, I is equals to 1 है, राइट? तो हमारा i plus while I plus plus is less than 5 हुआ, राइट? तो हमारा पहली बार में i क्या हो गया? पहली बार में i plus plus मतलब 1 से 1 is equals to 1 plus 1, तो क्या हुआ? आपका आंसर 2 हुआ। तो 2 2 is 2 हो गया, और 2 में क्या लिखा हुआ है? if I equals to 2, तो मतलब क्या होगा? नेक्स्ट टाइम whenever the I will use its value it will become 2, right? So postfix में क्या होता है? पहली बार में उसका वैल्यू बढ़ता है, फिर नेक्स्ट टाइम whenever it uses its value it will use the next value, right? तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट हो गया, अब वो यूज कर रहा है अपना वैल्यू, तो अब क्या हो गया? उसका वैल्यू 2 हो गया। तो इफ I equals to 2 कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब वो लूप के नीचे का इफ के बाद का जो भी चीज है उसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो सीधा उसके नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएगा। तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होने वाला है? अगेन आई प्लस प्लस, 3। होगा तो यस 3 होगा। तो 3 इज लेस देन 5, कंडीशन फुलफिल्ड, आई इज नॉट इक्वल टू 2, राइट? तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो क्या करेगा? x इज इक्वल टू x इंटू आई करेगा। x में क्या है? 1 है ना, और i क्या है 1 मेरा? 3 है। 3 तो क्या करेगा? 1 इंटू 3 करेगा, 1 into 3। हाँ या अब वापस वो क्या करेगा? अब x के अंदर 3 स्टोर हो गया, राइट? और वो कर क्या रहा है? x इज इक्वल टू x इंटू आई कर रहा है, राइट? मतलब कि वो हाँ। वापस नेक्स्ट टाइम 3 का वैल्यू यूज करेगा और वो i के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ओके, वी हैव टू कीप दिस इन हम्म, माइंड। अब वापस ऊपर जा रहे हैं, वापस i प्लस प्लस हो रहा है, i प्लस प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? i हमारा 3 4 प्लस 1 4 हो रहा है, राइट? 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5, तो वो अंदर घुसेगा, राइट? वो अंदर हाँ घुसेगा, वापस चेक करेगा, 2 नहीं है, कंटिन्यू नहीं करेगा, वो क्या करेगा? 3 इंटू 4 करेगा, बिकॉज प्रीवियस वैल्यू ऑफ द x was 3, now it 4। will multiply it with the value 5 which is 4, right? तो वो 12 करेगा। अब वापस क्या होगा आपका? आई वापस ऊपर जाएगा, वापस आपका i i प्लस, का वैल्यू 4 होगा, फिर प्लस प्लस तो फिर 5 हो जाएगा आके, तो फिर हाँ 5 into क्या करेगा वो? वापस क्या करेगा? 5, हम 4 प्लस 12 प्लस है करेगा स्टोर्ड ना, x का 4 वैल्यू। प्लस प्लस करेगा तो मतलब हाँ उस समय क्या हाँ उसका वैल्यू है? 4 है, राइट? तो वो चेक करेगा 4 इज लेस हाँ देन 5 और फिर इंक्रीमेंट करेगा। ओके, वो चेक करेगा हाँ 4 इज लेस देन 5, फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो वो क्या करेगा? 4 इज लेस देन 5, हाँ 4 इज लेस देन 5, फिर आई प्लस प्लस करेगा, राइट? आई प्लस प्लस हम्म, करेगा तो उसका वैल्यू 5 हो जाएगा। तब तक तो अंदर घुस चुका है, लूप के अंदर तो घुस ही चुका है, कंडीशन फुलफिल हो चुका है। फिर वो अपना पोस्टफिक्स वाला हाँ काम वही करेगा। बोल रहा था हम। फिर लूप अंदर में जाएगा, आई वो का क्या करेगा? x इज इक्वल टू x इंटू आई करेगा, मतलब क्या करेगा? वो आपका 12 12 into इंटू 5। 5 करेगा, मतलब क्या करेगा? 60 लाएगा, राइट? 60 लेके आया, फिर वो बाहर निकल के 60 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करने वाला है? पहले रिजल्ट इज इक्वल टू 60 करेगा। वही हम बोल रहा था, जब चेक हो रहा है और नहीं, जब लूप में चल रहा है तब चेकिंग वैल्यू से 1 प्लस होगा आई का।
जब भी लूप में जब भी ऐसे लिखा होता है ना कि आई प्लस प्लस, तो वो क्या करता है, करता क्या है ना कि वो पहले आई इज लेस देन 5 ही चेक करता है, मतलब जो हाँ, पहला वाला वो वैल्यू है ना नॉर्मल वैल्यू से चेक करता है और लूप के नॉर्मल अंदर वैल्यू से ही उसको चेक करता है, इंक्रीमेंट उसके करता है। बाद वो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट हाँ। करेगा उसके साथ। हाँ। ओके, ये एक की चीज आपके दिमाग में आपको रखना है जब भी आप आउटपुट कर रहे हैं कि वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर एन कंडीशन ना, इट विल चेक विद द प्रीवियस वैल्यू ओनली। ओके, देन वॉट एवर इज रिटर्न की इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो काम वो करेगा और लूप के अंदर घुसेगा। ओके, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। अंडरस्टूड सूर्यांश, आगे बढ़ू। हाँ मैम। हाँ, अब 130 करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? int x is equals to 1000, y is equals to 9, z is equals to 5। वापस ये आईसीएससी का ना डिवीजन फेवरेट है और पोस्टफिक्स प्रीफिक्स फेवरेट है, इसी में आप मास्टरी कर लीजिए, आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, now they have given you the do while loop. So what is basically they are doing in do while loop? Do while loop में कंडीशन एक बार एकदम लास्ट में लिखा हुआ होता है, तो do while loop कुछ ना कुछ हो ना हो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी क्या होता है, क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1000 बाई 9। 1000 by 9 is equals to what? It is equals to 111, basically 111. Now z is equals to z plus 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 1। z plus plus means what will store? It will store 5। पहली बार में y x का z का वैल्यू 5 होगा, 5 प्लस 1 तो वो क्या करेगा, z में 6 स्टोर करेगा। राइट, अभी चेक करना है y इज लेस देन इक्वल्स टू x। जेड y में पहला वैल्यू में तो 5 ही रहेगा, पहली क्योंकि वैल्यू में बाहर 5 में प्लस 5। 1 लिखा है ना बेबी, 5 प्लस 1 लिखा है अच्छा सीधा, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो 6 स्टोर करेगा ना करके, तो इसीलिए वो 6 स्टोर करेगा। अभी क्या है, अभी वापस वो चेक करेगा ना कि y में क्या है हमारा, y हमारा क्या है, y हमारा 9 है। 9 है और 9 एक्स is less वन than वन वन equals है। to 111, या लेस देन इक्वल्स टू 111। x में 111 आ गया है, राइट, तो कंडीशन फुलफिल। वापस क्या करेगा, x इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, मतलब क्या करेगा आपका 111 डिवाइडेड बाय 9 करेगा, तो 12। क्या होगा, 9 1 जा 2 12। बचेगा, तो 9 2 जा 18, 3 रिमाइंडर आएगा। वो क्या करता है, वो खाली क्वोशंट स्टोर करता है, तो क्वोशंट क्या है हमारा इस सम में 12 है, राइट। हम्म। तो वो 12 स्टोर करेगा x के अंदर। वापस क्या करेगा, z इज इक्वल्स टू z प्लस 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 1। बट लेट्स रिमेम्बर दैट z 8 प्लस होगा। प्लस मतलब अब इस बार में z का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि लास्ट टाइम z प्लस प्लस हुआ था तब हमने 5 यूज किया था, राइट, वो पोस्ट वाला नहीं, पार्ट था। इस बार z का वैल्यू 7 होगा, क्योंकि लास्ट टाइम z का वैल्यू 6 स्टोर यूज हुआ वो था। 6 करेगा, z प्लस प्लस है, पोस्ट है, वो यूज 6 करेगा, वैल्यू होगा 7। हाँ, वैल्यू 7 होगा प्लस 7, 1 8 तो वो होगा। 6 प्लस 1 7 करेगा। ओके, नहीं, और जब लास्ट टाइम हुआ था तब 5 प्लस प्लस वन था, तो उसमें z का वैल्यू 6 आ गया था और वो प्लस ओके, प्लस हाँ हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। पर यहाँ पे क्या हम लोग ये कर रहे हैं, z इज इक्वल्स टू z प्लस 1 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, z का वैल्यू तो स्टोर हो रहा है, z इज इक्वल टू z प्लस 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 1। ओ हाँ, z का वैल्यू स्टोर हो रहा है, करेक्शन, आई एम रॉन्ग। z का वैल्यू स्टोर हो रहा है तो वो क्या करेगा, z इज 8 हो जाएगा। प्लस 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 1, हाँ वो स्टोर कर रहा है, तो वो क्या करेगा 6, वैल्यू क्या हो गया था हमारा, 6 हो गया था, तो अभी वो क्या करेगा, 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1। नहीं, यहाँ पे ये स्टोर तो नहीं कर रहा है ना इसके अंदर। z तो स्टोर ही हो रहा है। x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लिखते तो स्टोर हो रहा होता उसके अंदर, यहाँ पे तो लिखा है z इज इक्वल्स टू z प्लस 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 1, हाँ, तो तो ये इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू 5 प्लस 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 1, तो मतलब हुआ z इक्वल 6। ओके, z 6, चलो करके देखते हैं तुम्हारे लॉजिक से, तो क्या होता है, ये 6 आपका 6 हुआ, 6 6 प्लस प्लस 1, प्लस 6 प्लस तो मतलब पहले का प्लस प्लस अभी होगा, तो वो 7 प्लस 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 1 पे अभी, तो वो 8 होगा।
नहीं, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये नॉर्मली जा रहा है, नॉर्मली मतलब है करके, वो मतलब हमको भी समझ में आ रहा है, जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से ये लोग इंक्रीमेंट ही नहीं मतलब वो वैल्यू जेड उसके का अंदर जो नहीं वैल्यू। स्टोर हो रहा है, यहाँ पे इसने एक फंक्शन डाल दिया ना तुम्हारा, पोस्ट फिक्स भी डाल दिया ना इसके साथ। नॉर्मली थोड़ी लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, थोड़ी लिखा हुआ है। अब वो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, तो ये वो नहीं हुआ ना, ये तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग x प्लस प्लस लिखते हैं या ये लिखते हैं, तो ये उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रहा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू जेड प्लस 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 वन, तो मींस दे हैव गिवन सम एक्स्ट्रा फंक्शन, लाइक जैसे कि लिखते हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डी लिखते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ सम के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रहा है। पर अगर ऐसे लिखे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 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 डी ऐसे लिखे तो वो क्या होगा, कहने का मतलब है वो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 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 डी करेगा, मतलब सम का जो प्रीवियस वैल्यू है वो वो तो प्लस उसके साथ मतलब डी का। इसके हिसाब से जेड प्लस प्लस कम्प्लीटली अलग वेरिएबल है। हाँ, एक अलग वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल है, वन एक अलग वेरिएबल है, तो उसका मतलब है इन दोनों को ऐड करेंगे और जो वैल्यू होगा वो z के अंदर स्टोर होगा, ना कि z के अंदर जो वैल्यू है, लाइक प्रीवियस वाले में क्या कर रहे थे, x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू आई कर रहे थे, राइट। तो ये x सेम वेरिएबल था, उसी के अंदर रिपीट हो रहा था, 3 into 4 हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, z प्लस प्लस आपका वो, जैसे मैंने सम इज इक्वल टू सम प्लस डी का एग्जांपल दिया, सम प्लस प्लस का, ये क्या होता है, ये एक अलग वेरिएबल कंसिडर करता है जावा, हाँ तो तो वो वो जब आपको जेड प्लस प्लस हो रहे हैं तो वो 5 को ही बेस रख रहे हैं, वो जो नया फाइव जेड का को ही वैल्यू बेस आ रहा रख है रहा है, एडिशन ना वो कि नहीं वो ले रहा है। आपका प्रीवियस वैल्यू ऑफ द जेड को हाँ बेस में रख रहा है, वो तो समेशन इसलिए नहीं ले रहा है। हाँ हाँ वो नहीं ले रहा है, तो ये प्लीज मत करना एग्जाम में, ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको करेक्ट कर दिया, अब आप मेरे को बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब मतलब शेनु ये समझने के बाद मुझे राइट समझा सकते हो। अभी क्या होगा आपका, 111 डिवाइडेड बाय 9 होगा, राइट। फर्स्ट वाला तो क्लियर है वो सबको कि 12 हो गया। Z6 आ गया, राइट। हाँ उसके बाद क्या होगा, 111 डिवाइडेड बाय 9 होगा, तो वो आपका 12 इसमें देगा। क्या होगा, 12 स्टोर होगा। हाँ Z में क्या होगा, Z का प्रीवियस वैल्यू मेरा 5 था, राइट। हाँ तो 6 प्लस 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 फिर 1 उसके होगा। बाद 5 प्लस प्लस हुआ था तो वो 6 हो गया था, राइट। तो अभी वो क्या कंसिडर करेगा वैल्यू को, यूज वो 6 करेगा, होगा 7, ओके, क्योंकि वो 6 प्लस प्लस करेगा, पोस्ट है तो यूज वो 6 करेगा, हाथ में हाँ आपका तो 7 6 होगा, प्लस वो प्लस 6 प्लस प्लस 1 1 करेगा तो z का वैल्यू क्या होगा इस बार, 7। 7 होगा, ओके। आई होप फिर ये सब तक क्लियर है, नहीं तो मैं रिपीट भी कर सकती हूँ। सूर्यांश समझ आया कि नहीं आया, स्टार्टिंग से रिपीट हम करो। समझ। समझ गए, अभी वापस ऊपर हाँ जाएंगे, वापस फिर ऊपर जाएंगे, 12 वापस बाई ऊपर 9 जाएंगे। होगा। नेक्स्ट स्टेप मेरे को सूर्यांश बोलेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। कौन सा लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप था हमारा 111/9। 111/9 मैम, उसके बाद 111/9 तो x का वैल्यू हो जाएगा 12। 111 डिवाइडेड बाय 9, फिर z इज इक्वल टू z प्लस प्लस, तो z का लास्ट वैल्यू था हेलो। हम इंतजार कर रहे हैं, सूर्यांश सॉल्व अच्छा। कर रहे हैं, हम लोग मुझे इंतजार लगा कर रहे हैं, मेरा फ्रीज हो गया। हम लोग वेट कर रहे हैं, सूर्यांश इज सॉल्विंग एंड ही इज गोइंग टू टेल अस द आंसर, सो वी वेटिंग फॉर हिज आंसर। होगा क्या, हमारा वैल्यू क्या था लास्ट स्टेप में, हमारा z का वैल्यू आया था, हमने यूज किया था 6 और हमारा वैल्यू क्या आया था 7, राइट। तो अभी क्या होगा, जब z प्लस प्लस होगा मीन्स 12/9 होगा, तो x के अंदर 3 स्टोर होगा, एंड जब z प्लस प्लस होगा तब क्या होगा, वो 6 यूज क्या किया था 6 और हुआ क्या था 7, तो मतलब हुआ मतलब अब क्या होगा, वैल्यू हमारा यूज करेंगे 7 और वैल्यू क्या होगा z प्लस प्लस
वैल्यू क्या होगा? 8 होगा वैल्यू, राइट? हाँ, 7 + +++1 7 प्लस 1, तो क्या होगा? 8 होगा वैल्यू। 8 तो होगा वो और क्या फिर हो रहा है? एग्जिट हो वो जाएगा z के लूप। अंदर स्टोर हो जा रहा है एक इनिशियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट z इज इक्वल्स टू 8 हो जा रहा है, इनिशियलाइज हो जा रहा है उसके अंदर, राइट? z इज इक्वल्स टू 8 हो जा रहा है। तो अब जब लूप के बाहर निकलेंगे तब वैल्यू z का क्या प्रिंट होगा? 8 प्रिंट होगा। डज इट मेक समझ गया। सेंस यस। और नहीं? सूर्यांश? हाँ, मेरे को एक चीज समझ नहीं आया मैम, अगर z का वैल्यू 6 था फर्स्ट स्टेप में, तो उसके बाद z +++1 हो जा रहा है, तो मैम नेक्स्ट स्टेप में 8 नहीं हो जाना चाहिए उसका वैल्यू? नहीं, क्योंकि जब ऐसे होता है तब z++ एक अलग वेरिएबल लेता है वो। तो जो इनिशियल वैल्यू था z का, इसमें 5 है, वही बेस वैल्यू लेके वो चलता रहता है z++ का। See, there is a huge difference between x is equals to x plus 1, okay, and x is equals to x plus 1. ये एक तरीके से वही हुआ ना, z is equals to z plus 1 और z is equals to z plus 1 is a huge difference. Z is equals to z plus 1 में क्या है? It is storing the value of z each time into it. Okay, but z is equals to z plus 1 is basically an example of an initialization and not whole incrementation. Okay, so every time when it is running, it is initializing the value into z and not actually में क्या बोलते हैं, what तुम लोग सबका जो ब्रेन चल रहा है कि हम इंक्रीमेंट करें, x प्लस प्लस करें, z प्लस प्लस करें, वो नहीं कर रहे हैं। वो हर बार एक वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर रहा है। z प्लस प्लस इज जस्ट अ नॉर्मल वेरिएबल लाइक एनी अदर वेरिएबल विथ विच वी आर एडिंग वन एंड स्टोरिंग दैट वैल्यू इन z. You getting my value point, Suryansh? What you यस are मैम। thinking is from the point of view of incrementation and decrementation. This point of view comes when I have written z is equals to z plus 1. But I have written z is equals to z plus 1. In that case, it will use z as a variable as an initialization variable and not as an incrementation or decrementation variable. Okay, this you guys need to keep in mind. These small areas are the where we need to those are the areas why we are discussing it and spending so much time, so that we don't do those mistakes when we are actually going to think about the output while giving our exam. Okay, so with this we are coming to the closure of our theory for today. Okay, I hope you guys don't have any doubts regarding the theory now. Okay, any doubts? Then we can still discuss. No doubts. Now let us focus on the program from where we had left. Yeah, in our previous class, we were discussing Smith number in our previous class, where we had kept it to be discussed in the coming class. So we will start with the discussion of our Smith number, and then we will focus on some other numbers. So before starting with the discussion on the Smith number, let us understand what is Smith number. Okay, what is Smith number? Does anyone of you remember what is Smith number? Just 1 second. Yeah. I hope you can see the screen. What is Smith number? Smith number is a composite number, the sum of whose digit is the sum of the digits of its prime factors obtained as a result of factorization, excluding 1. The first few such numbers are 4, 22, 27, 58, 85, 94, and 121.
Now let us see an example of a Smith number. After understanding the question only, you can understand the answer, right? So let us first give our ears to the question. What is a composite number? Can any one of you tell me what is a composite number? Non-prime. Non-prime, right? What does non-prime mean, Suryansh? Numbers which have more than which have more than two factors. Yes. So first thing which we have to check when a user inputs a number is that whether the number is composite or not. And for that, what we have to write? Can any one of you tell me? In order to check whether a number is composite or not, we will check whether it is prime or not. Simple. If it is prime, then it is a But prime. if C is equals, if C is not equal to 2, Then it is a uh, composite number, right? Else it is a prime uh, number. And if it is a prime number, then we don't need to check नहीं, whether it is a Smith number or not, right? इनफैक्ट अगर if लिखना होगा if C is equal to 2, रॉन्ग इनपुट या एग्जिट कर देना सीधा प्रोग्राम से सिस्टम डॉट आउट डॉट एग्जिट से, एल्स फिर बाकी का प्रोग्राम लिखना होगा. Right? So, हमारा first condition, what is the base condition? That we will check whether the number is prime or not. अगर नंबर प्राइम है तो वो स्मिथ नंबर हो ही नहीं सकता, राइट? तो अगर क्योंकि फर्स्ट थिंग इज स्मिथ नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर. फर्स्ट लाइन में ही लिखा है स्मिथ नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, एंड कॉम्पोजिट नंबर इज अ नंबर which is not a prime number, means which has more than two factors. So we will write a small program to check whether the number is prime or not. If the number is prime, we will system.out.println and it is not a Smith number. सीधा वहीं पे खत्म. ठीक है? पर अगर वो कॉम्पोजिट नंबर है तो फिर हम लोग आगे का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. ओके? सो प्रोग्राम को तोड़ तोड़ के करना है स्मिथ नंबर का. ओके? सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल चेक इन आवर प्रोग्राम इज whether the number is a prime number or not, मतलब whether the number is composite number or not. And for that we have to write the prime number program to check whether the number is if the number is prime, then it is not a Smith number, and hence we will not go further and will simply display that it is not a Smith number. Okay? And our job will be done there only. Now next what we are going to check, if the number is composite number, then we will, it is not a prime number, so it's a composite number, then we will go ahead with the program. Now we will read the second line after the comma. The sum of whose digits. Sum of the whose digits means sum of the number. Let's focus on the example 666. See, sum of the digits of that number, that is 6 plus 6 plus 6. So now next what we will calculate? We will calculate the sum of the digits of the number. Means we have to calculate the sum of the digits. Means 6 plus 6 plus 6. We all know to calculate the sum of the digits of a number, right? Do I need to teach? I don't think so. So we will calculate the sum of the digits of the number. That is 6 plus 6 plus 6, 18. यहाँ तक भी हम लोग कर सकते हैं, right? हम लोग sum of the digits calculate करेंगे. उसके बाद क्या लिखा है? Is the sum of the digits of its prime factors obtained as a result of prime factorization excluding 1. Means what will we do? We will prime factorize it. How do we prime factorize it? 666 divided by 2, we will get 333. 333 divided by 3, we will get 111. Right? Now 111 को 7 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7 1s 111, right? 111 again 111 divided by 3, so we will get 3 3s are 9, 2 will get 27, again 3 27 9. इसको वैसे जैसे बचपन में प्राइम फैक्टराइज करते थे वैसे प्राइम फैक्टराइज करना है हमें. चलो करते हैं. चलो सब मेरे साथ करेंगे. 666 को फैक्टराइज करेंगे. 2 से करेंगे हमें 333 मिलेगा. वापस 3 से करेंगे हमें 111 मिलेगा. वापस 3 से करेंगे हमें क्या मिलेगा? 3 3s are 9, 2 and 7, तो 37 मिलेगा.
37 मिलेगा. 37 इज अ प्राइम नंबर, सो 37 को 37 से करना. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2, 3, 3 and 37, where 37 is a two-digit number. So that two-digit number needs to break down into a single digit, and we will get 2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 7, which is equals to 18. And that is equal to 6 plus 6 plus 6, 18. So that is your Smith number, right? So again, we will have to calculate sum of the digits for 37. Okay. So if we have to calculate sum of the digits for 37, as well as we have to calculate sum of the digits for what you call is the original number, then my suggestion is that you use a method called sum of the digits, which each time you are going to call while running the program in order to calculate the sum of the digits whenever we are getting a prime factor of a particular number. Now let us understand how do we get a prime factor of a number. Basically, this मैम question. प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर ढूंढना अलग है, यही तो लास्ट क्लास में था. ये प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो कर रहे फैक्टराइजेशन हैं में ना. मैंने एक क्या किया नंबर है? मैंने ये बार बार प्राइम रिपीट हो फैक्टराइजेशन ही सकता तो है. किया ना. मैंने क्या किया? 666 को मैंने डिवाइड किया, 331 आया. मैम इसी सिक्स को सिक्सटी सिक्स तो ठीक है, अगर कोई नंबर हुआ है जिसमें कोई रिपीट हो रहा है, जैसे इसी इधर में तो तो रिपीट एग्जांपल हो, इसी, हाँ, रिपीट हो रहा है तो भी होगा. अभी लाइक करते हैं. 27, ट्वेंटी हाँ, सेवन में उसमें 3 कितनी बार आएगा? अपॉर्चुनिटी तो दो मेरे को बोलने ओके. का. अपॉर्चुनिटी तो दो मेरे को. वही तो बोल रही हूँ ना कि अभी कहाँ मैंने एक्सप्लेन करना फिनिश किया है करके. Sir, can I say one point, sir? Sir, initially, when Nifty goes up, FIIs are interested in investing more. So, सी, when Nifty हमें goes up, तब FIIs तक come लूप more. चलाना है जब तक कि एवरी And टाइम when द sir आई विल गेट FIIs, डिविजिबल विद when 2. FIIs are start और coming, the सी, Nifty आई विल शो यू द automatically goes up लॉजिक more. विच आई हैव रिटन. So, so both impacts can be there. Yeah, yeah. So this is a Smith number logic. Okay. We have just the program is divided into a lot of methods because we are going to check lot of methods for everything which is going to get fulfilled. Let's start with the main method itself, from where the program will get started executed. I have created an object like we all have learned, and those who not learned, for them just a repetition. How do we create an object? Class name, then we write a object name. Like I have given OB, you can give your name as well, or you can give AC, BC, NC, MC, anything. Okay. OB is equals to new, and then class name, bracket open, bracket close. Now what is this OB? OB is my what you call is an object through which I will call all my methods of whenever I want to call my methods. What are methods? This main is a method, then this is composite is a method, then what you call is some of the factors is a method. All these are my methods which I have created in order to, I have divided the entire program into small segments so that my logic just confines up to here. Okay. Now let us understand how first, in order to check whether a number is a Smith number or not, we will first input a number, right? So I have entered a number. Int n is equals to sc dot next int. Now, like we had discussed, that first we have to check whether a number is composite or not. If the number is not a composite number, then my program ends there only, and I'll simply print it's a composite number, and you have entered a composite number, comma, correction, it's not a Smith number. Okay, I'm just correcting it. It's not a Smith number. So my program got ended over here only, and I don't need to go ahead like we had discussed. If it is no here only, I checked and I got to knew that it's not a Smith number. Now I am going to the else position. Else position, we had decided that we are going to calculate the sum of the digits of the number. That is 6 plus 6 plus 6, 18. In case of our example, 66, 666. So I have used a method called sum digit. What will it do? It will find the sum of the digits.
Okay. How do we call a method? We will write the object name first, then a full stop, then we will write the method name, and then we'll pass on the variable of जिसका मुझे sum calculate करना है, sum of the digits calculate करना है. In this case मुझे 666 का pass करना है, जो कि मेरा n में stored है. So that's why I have passed the value of n, and that method is going to return something to me. What is the method going to return? Method is going to return the sum of the digits. So in order to store the sum of the digits, I have kept a variable called a, which I have declared as an integer. Okay, because this sum digit is going to return me an integer value. Now let's go to the method which is going to be calculating the sum of the digits. This method is going to calculate the sum of the digits. Now sum of the digits का logic अपना, चलो अपना क्या था, not equal to 0. ओके, तो अपना क्या लॉजिक है, while n is not equals to 0, d is equals to n mod 10 means 666 mod 10, it will give us 6, and s is equals to s plus 6, n is equals to n by 10, तो इसके अंदर 66 स्टोर होगा, ऊपर जाएगा, वापस वो क्या करेगा तुम्हारा, d is equals to 66 divided by 10, तो वापस 6 आएगा इसके अंदर, s के अंदर ऑलरेडी 6 स्टोर था, तो आपका 6 plus 6 12, वापस इसके अंदर n is equals to n by 10, तो 6 स्टोर करेगा, वापस ऊपर जाएगा, 6 is not equals to 0, तो वो क्या करेगा, d is equals to 6 mod 10, तो 6 स्टोर होगा, 12 plus 6 18 हो जाएगा, और रिटर्न क्या करेगा, सम, जो कि यहाँ पे 18 स्टोर हुआ है, that only it is going to return. Where it is going to return? It is going to return here. It is going to store 18 in A. What is it going to store 18 in A? अब इस कॉम्पोजिट वाला पार्ट भी समझ लेते हैं, सॉरी मेरे से स्किप हो गया. इस कॉम्पोजिट में हमें क्या चेक करना था, वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, राइट. तो प्राइम में क्या होता है, इक्वल टू 2 होता है, और अगर कॉम्पोजिट चेक करना है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 2. अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो ट्रू कर रहा है. ये प्राइम नंबर का लॉजिक है अपना. अपने क्या कर रहे हैं, इंट सी इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, क्या करें, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस, इफ एन मॉड आई इक्वल टू 0, सी प्लस प्लस. अगर c इक्वल टू 2 होता तो इट वुड हैव बीन अ प्राइम नंबर. अगर ग्रेटर देन 2 है तो मतलब वो कॉम्पोजिट नंबर है, और अगर इक्वल टू 2 होगा या लेस देन 2 होगा, जो भी होगा, तो वो क्या होगा आपका, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, और वो आगे हम लोग नहीं प्रोसेस करेंगे. तो इसको मैंने बुलियन रखा है, और बुलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है वैल्यू को. तो अगर वो ट्रू है तो वो क्या करेगा, वो एल्स केस में जाएगा, अगर फॉल्स है तो यहीं से खत्म हो जाएगा, और वो लिख देगा इट इज नॉट अ स्मिथ नंबर. अब आते हैं इंट b इज इक्वल्स टू ओबी डॉट सम प्राइम फैक्टर ब्रैकेट n पे. ये क्या करेगा, मुझे हमें नेक्स्ट क्या करना है, मुझे सम ऑफ द प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना है, राइट. सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वापस एक मेथड क्रिएट किया है जो कि आपको सम ऑफ द प्राइम फैक्टर रिटर्न करेगा. वापस ओरिजिनल नंबर का है, मुझे 666 का प्राइम फैक्टर करना है, तो मैंने ओरिजिनल नंबर को यहाँ पे पास ऑन किया. अब किसी के दिल में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे भी एन लिखे हैं, आप यहाँ पे भी एन लिखे हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं हर जगह पे ये एन, कि हम लोग अलग वेरिएबल भी लिख सकते हैं. आप चाहो तो आप अलग वेरिएबल भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप सिमिलर वेरिएबल भी लिख सकते हो, इट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम. ओके, अब आते हैं हम लोग लॉजिक के ऊपर. तो अब लॉजिक में क्या है, 1 तो उन्होंने बोला है, खुद ही बोल दिया भाई कि आप मत इंक्लूड करिएगा, तो हम लोग आई को 2 से ही चलाएंगे, ठीक है. और मुझे सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स चाहिए, इसलिए मैं सम भी ले रही हूँ और उसको 0 इनिशियलाइज कर दे रही हूँ. I will run my loop till my n, means till my number is greater than 1. The moment my number, I'll keep dividing my number with I, and till the time my number is greater than 1, I will keep on dividing. जैसे ही मेरा नंबर इक्वल टू 1 या लेस इक्वल टू 1 हो जाए, जो कि लास्ट में होता है. 666 में आपने देखा 37 को 37 से डिवाइड किया तो मेरा लास्ट में आंसर 1 आ गया था, जो कि मेरा ओरिजिनल नंबर 1 बन जा रहा है, राइट. तो जब मेरा नंबर 1 बन जा रहा है तो वो नंबर ग्रेटर देन 1 तो होगा ही नहीं, तो वो इस लूप से बाहर निकल जाएगा और मुझे सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो रिटर्न कर देगा. ओके,
अब इस मेथड के अंदर भी मैंने एक और मेथड का यूज किया है, ये भी आप ख्याल रखिएगा कि मैंने सम प्राइम फैक्टर के अंदर मैंने सम डिजिट को भी यूज किया है। क्यों यूज किया है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अभी क्या है इसमें कि इफ n mod I equals to 0 means 666 divided by 2 is equal to 0 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो क्या कर रहा है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सम डिज ब्रैकेट आई, मींस वो क्या कर रहा है, टू जो है टू का भी डिजिट्स वो एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जाके टू का डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा। ये मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि लास्ट में जब वो 37 आएगा तो मुझे 37 का भी सम चाहिए, 3 + 7, राइट। तो मैं स्टार्टिंग से ही टू का भी डिजिट एक्सट्रैक्ट करूंगी, थ्री का भी करूंगी, थ्री का भी करूंगी, जब मेरा 37 आएगा तभी भी वो ऑटोमेटिकली डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा। भले आप बोल रहे हो कि टू तो सिंगल डिजिट है मैम, आप क्यों चेक कर रहे हो, बट मुझे थोड़ी पता है कि कब सिंगल आने वाला है और कब डबल आने वाला है, राइट। तो मैं स्टार्टिंग से ही चेक करूंगी, हर बार मैं उसका सम कैलकुलेट करूंगी। क्या करेगा ये मेथड, बट टू इज नॉट इक्वल टू 0, टू इज इक्वल टू 2 mod 10, और वो वापस 2 देगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 2 देगा, n/10 करेगा तो वो 2/10 करेगा तो वो 0 हो जाएगा, वापस रिटर्न s करेगा तो वो अब यहाँ पे 2 ही रिटर्न करने वाला है। मैम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जब 37 आएगा, 11 आएगा, 14 आएगा, 7 मतलब 17 आएगा, मतलब ऐसे सब नंबर्स आएंगे तभी भी मुझे ये सम चाहिए, मैं इसीलिए ये कर रही हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा वो, n इज इक्वल्स टू n/i करेगा, मींस व्हाट इट विल डू, इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ i, चेंज द वैल्यू ऑफ n करेक्शन, इट विल स्टोर 666 divided by 2 that is 333 which we want प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, तो क्या करें, 666 डिवाइडेड बाई 2 ही स्टोर करना है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें 333 को डिवाइड करना है, तो दैट इज ओनली आई एम रिप्लेसिंग 333 and dividing it 333 in the original number, right? Now 333 is greater than 1, yeah it is greater than 1, but greater than 1 तो वो वापस क्या करेगा, 333 mod I करेगा, मतलब वो 2 से डिवाइड करने का कोशिश करेगा, पर उसकी कोशिश फुलफिल नहीं होगी, उसकी कोशिश फुलफिल नहीं होगी क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा, तो वो एल्स केस में जाएगा। एल्स केस क्या है, i प्लस प्लस मीन्स i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू अब 3 होगा। ऐसे देखा जाए तो मतलब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आई यूज होगा तब आई अपने आप को 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेगा, वापस ऊपर जाएगा, 333 इज अगेन ग्रेटर देन 1 सो इट विल अगेन गो एंटर द लूप एंड नाउ इट विल डिवाइड 333 बाय 3, 333 बाय 3 वैल्यू फुलफिल हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो अगेन इट विल डू सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सम डिज ब्रैकेट आई, ऑलरेडी सम के अंदर 2 स्टोर्ड है, अब वो क्या करे, 2 प्लस सम डिज आई करके 3 कर रहा है, तो वापस 3 का डिजिट सब्ट्रैक्ट होके 3 वापस आएगा, 2 + 3 5 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। वापस क्या कर रहे हैं, n इज इक्वल्स टू n/i, मतलब 333 डिवाइडेड बाय i, 333 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 111। अब हमें नेक्स्ट 111 से ही डिवाइड करना है, तो अब वो 111 n के अंदर रिप्लेस करेगा, वापस ऊपर जाएगा, 111 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो वो क्या करेगा, इफ 111 mod i इक्वल टू 0, मतलब क्या है, 111 3 से डिवाइड हो ही रहा है, राइट, डिविजिबल है। शिनुज का क्वेश्चन था कि मैम जब रिपीट हो रहा होगा तब क्या, यहाँ पे भी तो रिपीट हो रहा है ना आपका, 3 देखो रिपीट हो रहा है, प्रीवियसली भी 3 से डिवाइड किया था, अभी वापस 3 से डिवाइड करें, देखो तुम्हारा जो डाउट है वो यहीं पे क्लियर हो रहा है, वापस 3 से डिवाइड कर रहा है, तो वापस क्या हो रहा है, 111 डिवाइडेड बाय 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो वो ले अंदर घुसेगा, वापस क्या करेगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सम डिज ब्रैकेट आई, तो वापस वो 5 के साथ, हमारा 2 + 3 हो चुका है, अब 5 के साथ वो क्या करेगा, 5 प्लस वो वापस 3 को ऐड करेगा, उसका डिजिट सब्ट्रैक्ट करके वापस 3 वापस आएगा उसके अंदर, तो वो 3 को ऐड करेगा, वापस क्या करेगा, तुम्हारा 111 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 37 जो भी आंसर है वो इसके अंदर स्टोर करेगा, एन के अंदर स्टोर करेगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस वो क्या करेगा, 37 इज ग्रेटर देन 1, यस 37 इज ग्रेटर देन 1, बट 37 डिवाइडेड बाय 3 वाला कंडीशन इस बार फुलफिल नहीं होगा, इसलिए वो एल्स में जाएगा, वो i प्लस प्लस करेगा और वो i को 4 करेगा,
वापस वो 37 डिवाइडेड बाय 4 करेगा, मॉड 0 नहीं आएगा, वो वापस आई को 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, जब तक वो आई 37 तक नहीं पहुंचता तब तक वो अपने आप को इंक्रीमेंट करते रहेगा एल्स केस में जा जाके। क्योंकि हर बार वो 10 से भी नहीं आएगा, 14 से भी नहीं आएगा, 17 से भी नहीं आएगा, 23 से भी नहीं आएगा, 27 से भी नहीं आएगा, 32 से भी नहीं आएगा, 35 से भी नहीं आएगा, तब तक एल्स आई प्लस प्लस होता रहेगा। जब 37 आएगा तो 37 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फुलफिल होगा, 37 इज योर प्राइम नंबर। सो वो क्या करेगा, ऑलरेडी हमारा क्या स्टोर हो चुका है, 5 प्लस 3 सम के अंदर 8 स्टोर हो चुका है, राइट। तो अब वो क्या करेगा, अब वो सम डिज ब्रैकेट आई करेगा और 37 का डिजिट सब्ट्रैक्ट करेगा, और जब 37 का डिजिट सब्ट्रैक्ट होगा तो वहां से हमें 10 मिलेगा, राइट, क्योंकि 37 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 दैट इज 10। तो यहाँ से मेरा रिटर्न, मेरा वैल्यू 10 आएगा, ऑलरेडी मेरा 8 था, ये मेरा 18 हो जाएगा, और अब मेरा 37 बाई 37 n के अंदर स्टोर होगा जो कि 1 स्टोर होगा। सो नाउ जब वो ऊपर जाएगा तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, सो वो एग्जिट कर लेगा लूप से, और वो रिटर्न क्या करेगा, सम जिसके अंदर 18 स्टोर्ड है। अब वो कहाँ पे रिटर्न करेगा, वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा 18 आपका, और ए और बी का वैल्यू प्रिंट किया गया है, मतलब दोनों का 18 18 प्रिंट होगा, और 18 इज इक्वल्स टू 18, यस, सो इट्स अ स्मिथ नंबर। अगर ये नहीं फुलफिल होता तो नॉट अ स्मिथ नंबर प्रिंट होता। अब बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम, सुन भी रहे थे कि सब सो गए थे? समझ आया कि नहीं आया? Suryansh, Srinoj, there? हेलो हेलो। Yeah, you guys are there? समझ आया कि नहीं आया लॉजिक, कि मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सर के ऊपर से गया। मैं अनम्यूट करो, अनम्यूट अपने आप को। You're not being able to unmute. You can write. You have that option of message. अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, समझ आया कि नहीं आया? वापस रिपीट करूं? सूर्यांश समझ आया कि नहीं आया? सूर्यांश, you there in the line or you're not there? हाँ ठीक है। और पता नहीं क्यों कंट्रोल माइनस हो गया होगा, एकदम छोटा हो गया था सब कुछ। समझ आया कि तुम लोग को हाँ अभी समझ। इट्स अ हाँ वेरी, समझ आया सूर्यांश? मैंने हाँ लॉजिक हाँ व्हाट्सएप भी किया है सबको, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस मैंने आपको पूरा बेस से समझाया, क्योंकि देखिए बहुत सारी मेथड्स है इसके अंदर, समझना जरूरी है, क्योंकि स्मिथ नंबर एग्जाम में आता है। 2 मिनट आपको व्हाट्सएप में जो भी लॉजिक मिला है उसको गो थ्रू करो। अभी आपको समझ आ गया हो, पर हो सकता है गो थ्रू करते समय आपको कोई स्टेप नहीं समझ आए, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 2 मिनट अपने व्हाट्सएप में जाके उस प्रोग्राम को, जो सोल्यूशन मैंने दिया है, उसको आप गो थ्रू करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को बोलो। सो गिव दैट 2 minutes टू दैट प्रोग्राम, ओके, बिकॉज इट्स एन important program that usually it comes in your practicals and not theory writing, okay? So from practical exam point of view, means from compilation point of view, this program is important for ICSC, because there is a practical exam as well in your case, right? Because Java is a practical subject.
So keeping that in your mind, just go through 2 minutes with that program. I'm coming. Come on. पढ़ा कि किसी ने पढ़ा भी नहीं. देख रहे हैं एक मिनट। I'm waiting. You should go through it very nicely. In case if you're having any doubt, you come back to me. I should even give the question, otherwise you guys will may have the issue of searching for the question, right? Yeah, I can give you the question as well. Give both the question as well as the answer. Still, if any doubts, you can ask me. Okay, no problem. There's no problem in me repeating, because I know it's a very good program and an important program from the point of view of your examination. Okay, and we will do more method calling programs also from the next class, so that my students get confident with using methods, because few of not everyone is confident in beginning, while when we have been shifting to the change from methods in programs. So we will even do some programs related to that as well, for practice purpose. As a practice set, I will bring it, and next class we will do that also, and we will even discuss the theory related to it. Okay, which usually comes in your exam. So simultaneously दोनों काम हो जाएंगे, right? अगर गंगा में हाथ डाल ही रहे हैं तो पाप भी धो लेते हैं और पवित्र स्नान भी कर लेते हैं, दोनों काम हो गया ना करके वैसा काम करेंगे. ठीक है. With this I guess we don't have any doubts related to Smith number. Next, what was left in the last class, if I remember, that was amicable number, right? With respect to Suryansh and Shrinuj, I guess we have done amicable number, if I clearly remember. So that, if you guys want, I can discuss. I don't have problem in discussing. Uh, what was the amicable number basically? Amicable number as a number it suggests was if two numbers are such that the sum of the perfect divisors of one number is equal to the another number, and the sum of the perfect divisor of the another number is equal to the first number, then it is called an Then it is amicable number. amicable. Easy है एकदम. Like 220 को डिवाइड करेंगे और उसका जो फैक्टर्स मिलेगा, उसका जो सम है विल बी इक्वल टू 284, एंड 284 को डिवाइड करेंगे और उसका जो फैक्टर्स मिलेगा आपको, वो उसका जो सम होगा विल बी इक्वल टू 220. Okay, so that is amicable number. Now if you guys understand what is amicable number, then can you just write the program of it right now and give? And I suppose कि नंबर को एक्सक्लूड करना होगा नंबर itself. हाँ, क्योंकि वो नंबर को एक्सक्लूड करना होगा. नंबर को whenever we are calculating the factor, the loop will run less than n.
Okay, so I would request you both to write the answer, because it may come in your exam. In case of switch case में दो केसेस में पूछ लेंगे, एक आपका ट्विन प्राइम पूछ लेंगे और एक एमिकेबल पूछ लेंगे. ये आईसीसी का टेंडेंसी है कि वो स्विच केस में ये दो पूछ सकते हैं आपको. That is, they will ask you to check twin prime and they will ask you to check whether the two numbers are amicable or not. So can you just write the program rather than yawning? आई नो नींद आ रहा है ना, थोड़ा लिख लेंगे तो ब्रेन भी साफ होगा, हाथ हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और एग्जाम में प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट? सो मुझे ये प्रोग्राम लिख के देंगे आप लोग. प्रैक्टिस भी करनी है ना हमें, सिर्फ मैं बोलूंगी और मैं ही सुनूंगी ऐसा तो नहीं है ना, हमें खुद को प्रैक्टिस भी करना है. कम ऑन, प्रैक्टिस करो. चलो, come on, give, write the logic of amicable and give me, because we all, you both know na, that's why I'm not showing you the answer. I can even show you the answer, I will show you the answer in a while, just that I just want you guys to just write the answer right now. After that we will even practice some numbers which we have done previously. So अभी हमारा practice set ही है, we are just revising it for the examination purpose. एग्जाम में एक नंबर तो आएगा ही आपका, कोई भी आ सकता है, अब ये नहीं बोल सकती कौन सा आएगा. Because see, while loop and for while loop is going to come in your exam. So when there is a while, there is a for, then there is always a will of giving a number in your paper. Okay, चाहे फिर वो पैलिंड्रोमी क्यों ना हो, सब while loop से होता है, right? So इसीलिए there is a high probability of getting a number in your paper. So, and I would request, rather than typing, you should write, because you have to write your exam at the end of the day, right? So try to write your answer. I know I have a tech generation to teach now who is more advanced in technology than me, but still I would request that you write, because sometimes when we are writing we are not being able to produce that logic. It happens with me also. Nowadays I can't do it with paper and pen. I always need my computer. It should not be with you, because you have to write your exam. I have gone through that phase, right? So मेरे लिए ये dependency is fine. To you, this dependency is not fine. Once you finish, you're going to, like, every time you guys WhatsApp me your answers, you're going to WhatsApp me your answers. Then I will give you the next question to write.
All the logic is right, but just one thing which I want to say is that why are we equating it with d and मतलब उसी के साथ तो करना है, जो दो नंबर लिया है, एक का सम ऑफ द फैक्टर्स को दूसरा नंबर तो के साथ। हमारे नंबर्स किस में स्टोर किए हमने, ए और बी में स्टोर किए, क्या मेरे नंबर 0 हो रहे हैं, क्या हम कोई वाइल लूप चला रहे हैं, तो क्या हमें जरूरत है उसे किसी और टीचर लोग प्रेफर करते हैं कि अगर लूप में एक वेरिएबल यूज हो गया है और उसको वापस आउटसाइड द लूप यूज करना, तो एक दूसरा वेरिएबल करके करो। I know that this is a preventive method, but it's if it is required we use it, if it's not required why are we doing that extra job, come क्योंकि on. टीचर प्रेफर कर रहा है, इसीलिए टीचर ओके, जो टीचर प्रेफर कर रहा है स्कूल में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टीचर नहीं प्रेफर कर रहे तो अलग बात है. मेरा मानना है कि हमें एक्स्ट्रा बेकार में नहीं वो करना तो चाहिए, हमको भी बट पता है, इट्स अ जब स्कूल तक मेथड, वाइल आई लूप विल में नॉट से. यूज नहीं हुआ है तब तक जनरली जरूरत नहीं होता नंबर को वापस स्टोर करने का किसी में, No problem. वाइल If लूप में, you are क्योंकि teacher जनरली prefer वैल्यू this जीरो। method, no problem. With me, it's not a problem. I just wanted to just say that in case there is some logic correction or something area of me. So that's why it's completely fine with me. If the teacher wants you to use it that way, I'm okay with it. भाई स्कूल की टीचर जो भी बोले वो इट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लुक टू. वही हमें टीचर मार्क्स जैसे वही बोलेगा। देने वाली है, राइट? देखो, अगर सूर्यांश, अगर आपको एमिकेबल में डाउट है तो देखिए एमिकेबल का पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है. वी विल रन द लूप till less than x and see we will input two numbers basically and we will run the loop till less than x. We'll check the factors. How do we check the हाँ मैंने कर factors? लिया, X mod भेज r. दिया। ओके, कर लिया. ओके, तुम इतने शांत रहते हो ना कि मुझे लगता yeah, absolutely correct. And it's a easy program only. So it's not a problem. I'll just share this program for those who have not done it. Okay. So that's with which now the next number which we are going to practice today is going to be what? Let us look over to our what file. So we have done our amicable number. This special number has come into the ICSC examination. So let us even practice this number as well. I know it's a very easy number, but it has come in ICSC year 2009 or something like that sort of. But before doing that, let us focus on some another numbers which we have not done. I guess this special number is very easy. Automorphic number also we have done many a times. Special हाँ number is a ऑटोमोटिव किया हुआ है। digit number. 59 is a special number where 5 plus 9 is 14. We'll calculate the sum of the digits, and 5 into 9 is 45, right? 45 plus 14 is equals to 59 actually. So that is equal to the original number. And this is a very simple and easy logic. पहले digit extract करना है, उसका sum करना है, उसका product भी calculate करना है. Sum of product को add कर देना है, that is going to be equal to the original number, and that's how we will get the number. So this is very very easy logic. If we get time, we will do this also in your handwriting. But if we not get time, then we will not do. So let us इजी है, सिंपल है। इजी है. एमिकेबल तो कर चुके हैं, ऑटोमॉर्फिक भी हो चुका है, स्मिथ भी हो चुका है. अभी आते हैं हम लोग एमिकेबल के बाद वाले पे. कैन कैन Shinus read this program for me? Write a program to input a number and check whether it is Desarium or not. A number is Desarium if sum of its digits powered with the respective position is equal to the original number. ये भी किए हुए हम लोग, डेसिटियम नंबर करके हम लोग किए थे। हाँ, तो एक बार करने में क्या जाता है. हम बस बोल रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, जो हार्ड हार्ड नंबर है वही प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इजी इजी नंबर है वो क्यों प्रैक्टिस करें.
ठीक है, तो डिसेरियम नंबर अगर हमने किया हुआ है तो आप लोग लॉजिक मुझे देंगे पक्का, राइट? तो चलिए शुरू हो जाइए। एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज द डिसेरियम नंबर? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट डिसेरियम नंबर इज अ नंबर इज कॉल्ड इफ द सम ऑफ द डिजिट्स powered with the respective position is equal to the original number, then it's a Disarium number. Now for example, if I take 37, then 37 is a 3 digit number. पहले क्या काउंट करना होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना होगा, कितना डिजिट है ये कैलकुलेट करना होगा कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो, ठीक है? फर्स्ट थिंग शुड क्लिक, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स शुड कम इनटू योर माइंड while doing the program. So number of digits कैसे calculate करेंगे? While n is not equal to 0, s plus plus n is equals to n by 10 करेंगे, लूप चलता रहेगा, जितना भी डिजिट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। n को किसी और वेरिएबल में जरूर स्टोर करके रखेंगे क्योंकि इस बार हम लोग while लूप चला रहे हैं, राइट? अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, टू दी पावर करना है। कब तक? जब तक मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 0 नहीं हो जाता। while my c is greater than 0 हम लोग लूप चलाएंगे और क्या करेंगे, s is equals to ग्रेटर देन 0 तक लूप चलाएंगे, d is equals to n mod 10 करेंगे, वापस मुझे लास्ट डिजिट मिलेगा 135 का d के अंदर, और लास्ट डिजिट जो मिलेगा उसके साथ क्या करेंगे, c पावर करना है। तो कैसे करेंगे हम, इंट s इज इक्वल्स टू s प्लस ब्रैकेट में एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे, इंट ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, मैट डॉट पाव ब्रैकेट d कॉमा लास्ट डिजिट कॉमा c करेंगे जिसके अंदर 3 डिजिट स्टोर होगा, राइट? 3 स्टोर होगा तो क्या होगा, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा मेरा। फिर नेक्स्ट है, और उसके बाद वाले लाइन में क्या लिखेंगे, c माइनस माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू n बाई 10 लिखेंगे, राइट? और फिर ऊपर जाएंगे, फिर वापस मतलब क्या करेंगे, हमें 3 मिलेगा, 3 के साथ भी क्या होगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना जरूरी है क्योंकि हम लोग डबल नहीं यूज कर सकते हैं, और मैथ जब यूज करना होता है तब हमें डबल ही यूज करना होता है। तो प्लीज मत भूलिएगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ब्रैकेट में पहले इंट लिखेंगे फिर मैथ डॉट पाव करेंगे, ठीक है? कॉमा अगेन d कॉमा c करेंगे, c माइनस माइनस करेंगे। लूप कब तक चलेगा, लूप जब तक पहले कंडीशन क्या होगा लूप के अंदर, while c इज ग्रेटर देन 0, फिर उसके अंदर और एक कंडीशन क्या आएगा, while n इज नॉट इक्वल्स टू 0, d इज इक्वल्स टू n mod 10 करके होगा। जैसे ही हमारा आउटर कंडीशन फुलफिल हो जाएगा हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे। जब c हमारा 0 हो जाएगा हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और नंबर भी खत्म हो जाएगा। लॉजिक समझ आया तो आप प्लीज लिख के दीजिए मुझे ये लॉजिक। लॉजिक में कहीं पे भी कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। मैंने लॉजिक भी पूरा डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप में मैंने दे दिए।
I have explained you one method of doing this program. I will even show you another method to do the same program so that I can prove that one एक मिनट का लॉजिक और दूसरे मिनट का लॉजिक बदल सकता है. जावा में कान सीधी तरीके से भी पकड़ सकते हैं, उल्टी तरीके से भी पकड़ सकते हैं. ओके, आई हैव शोन यू, आई हैव डिस्कस्ड वन मेथड ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम. I will show you even another method of doing the same program, which is more simpler than this program. Okay, this which I have discussed with you. This I discussed with you because this is still now in your syllabus. Okay, now what I will discuss is basically related to string functions, which I've not been introduced to you till now. But I'll introduce you a little bit and then I'll tell you how this program will become very simple like a cakewalk when you will then we will use the string function. Let both of you finish writing this logic, then I will discuss you this another logic also. मैम Because when you भेज will दिया। appear for ICSE, ILC, when you will appear for ICSE exams, you will appear with full syllabus and not string नहीं कराया है कि while नहीं कराया है कि do while नहीं कराया है, ये नहीं पूछेगा, right? तो दोनों तरीके से समझते हैं. आज समझ रहे हैं तो आपने ऐसे किया वैसे भी राइट है, और एक तरीका भी मैं समझाऊंगी वो भी राइट है. उसमें कुछ फंक्शंस है वो भी डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपका प्रोग्राम्स चेक कर लेती हूँ, तब तक बाकी सब लोग भी भेजते हैं. आई एम वेटिंग. Shouldn't absolutely correct. Well done. Very good. See, thanks. Uh, See, just 2 minutes to what you are guys are writing. Just focus on the screen. See, एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं. अगर मैं इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं और फिर मैं उसका लेंथ कैलकुलेट कर लूं तो मुझे वो नंबर ऑफ डिजिट्स अपने आप मिल जाएंगे. लाइक 133 135 को मैं कंप्यूटर को बोलूं कि वो स्ट्रिंग है और फिर वो उसका लेंथ कैलकुलेट करे. जब वो लेंथ कैलकुलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली 135 वो 3 अलग-अलग कैरेक्टर्स समझेगा और वो मुझे 3 दे देगा सीधा. राइट, तो भी मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा. इन शॉर्ट ये हम लोग का फर्स्ट लूप को एक लाइन में कर दिया. फर्स्ट लूप को मैंने एक लाइन में कर दिया और मैंने जो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का बोला था जो कि शिनुज आपने नहीं किया है वो प्लीज आप कर लीजिएगा. जो कि यहाँ पे क्या है, इंट करके ऐसे एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना होगा. सम को हमें इंटीजर में लेना होगा और मैट डॉट पाव विदाउट डबल नहीं यूज हम तो डबल ऐसे इनिशियलाइज किया था. ओके, यू हैव इनिशियलाइज्ड इट एज डबल, देन इट इज डबल फाइन. एस इज इक्वल टू 0.00 इनिशियलाइज में. Okay, it's not a problem, but usually when we are running loops, we avoid using double variables within the, मतलब ऐसे जब कर रहे हैं तो. पर कोई बात नहीं, तुमने किया है तो कोई रॉन्ग नहीं होगा करके, मतलब. पर जस्ट फॉर द सेफ्टी साइड हमने सम को इंट लिया है और यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया है. मैट डॉट पाव डी कॉमा एल किया है, एल माइनस माइनस किया, मैंने लेंथ माइनस माइनस किया. ये मेरा एक फंक्शन है इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए. स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट एन करेंगे. इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग करने से वो क्या होता है, इट्स अ फंक्शन नेम विच विल हेल्प मी कन्वर्ट एन इनटू स्ट्रिंग टाइप.
ओके, एंड देन आई विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज 135। अगर स्ट्रिंग हो गया तो 1 भी एक कैरेक्टर है, 3 भी एक कैरेक्टर, 5 भी एक कैरेक्टर, तो 1 2 3 वो मेरे को 3 ऑटोमेटिकली दे देगा। चूंकि हम लोग पूरा एक वाइल लूप रन करके नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम लोग सिंपली ये 2 लाइन में कर सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ लाइन्स और स्पीड भी मैटर करती है एग्जाम में। तो अब यही मैं बताना चाहती थी कि आप कोई भी प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक सेकंड में आपका लॉजिक ये हो सकता है, दूसरे सेकंड में आपका लॉजिक वैसे भी हो सकता है। लॉजिक सारे राइट होते हैं कंप्यूटर में, अप्रोच सही होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो आप किया क्या है यहाँ पे वही सेम किया है हम लोग, और फिर लास्ट में जाके इक्वेट किया है और हमें आंसर मिल गया है। अगर इस प्रोग्राम में आप बोले थे एक दिन की स्ट्रिंग आर्ग्स जनरली स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स में लिखा रहता है, अगर इसमें स्ट्रिंग आर्ग्स नहीं लिखता तो प्रॉब्लम होता? यस, इसमें होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन स्ट्रिंग। We have called, this is basically when you will go into the class 10, we will do one dimensional arrays, single dimensional arrays, double dimensional arrays. If you'll go into class 11 and 12, we will do double dimensional arrays also as well. In class 10, when you will get promoted, or I don't know whether 10 or 11, you have a chapter called in max matrices. You know that chapter in max is related to computers as well. In max it is matrices, in computer language it is arrays. So we will use how we can create those matrices oblique arrays in computers. You know, there are single dimensional arrays, there are double dimensional arrays that will come into your class 10, 11, 12 syllabus basically. And then we will even learn sorting, different type of sortings, like arranging it in ascending order, descending order, everything within the arrays. So this is basically a string array. This is basically a string array, and we are importing via this, we are importing all the functions which are stored in that array. You know, so this is one of the functions which is stored in that array, which helps us convert number to string type within just one function. यूजुअली क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने अभी सीखा था, हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। यहाँ पे यहाँ स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम लोग सिर्फ उसी एरे को मेन के ब्रैकेट में लिख देते हैं और सारे फंक्शंस अपने आप आ जाते हैं। ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर नाउ। आई नो ये स्कूल में कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बट क्योंकि ये डाउट था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो श्रीनुज का वेट कर रहे हैं, सूर्यांश का वेट कर रहे हैं लॉजिक लिखने का। सूर्यांश, आपका लॉजिक लिखना फिनिश हुआ? हाँ मम्मी। देखो, मैं आपको डिसैरियम मेरे लॉजिक से भी दे रही हूँ, और डिसैरियम जो कि शिनुज ने लिखा वैसे भी दे रही हूँ। दोनों तरीका राइट है, ठीक है। आपको जो भी तरीका अच्छे से समझ आ रहा है आप उस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, वो है आपका नीविन नंबर। नीविन नंबर क्या होता है? नीविन ऑब्लिक उसको हर्षद नंबर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में अगर ऐसे हर्षद नंबर लिखा हुआ है तो मत कंफ्यूज होइएगा, वो नीविन नंबर ही है। एक नंबर के दो दो नाम भी होते हैं करके, जैसा अभी डिसेरियम में हमने सुना कि शिनुज ने एक नाम बोला, मैंने एक नाम बोला, राइट। So don't get confused. Never read the numbers, never go by the name of the number and start writing the logic. Always read the definition of the number and then start framing your logic. Okay. So what is a Newton number? Newton number is irrational mathematics. A Harshad or a Newton number is an integer base 10 that is divisible by the sum of its digits. इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने, just 1 second, I'll get back.
कंप्यूटर हैंग हो गया। Suryansh, finished? I'll start discussing the another one when we just have 15 minutes more. So, कौन सा दिख रहा है? हम लोग दिख रहे हैं कि हर्षद या निविन नंबर दिख रहा है? श्रीनुज? कौन सा स्लाइड दिख रहा है तुमको? मैं दिख रही हूँ। देखो, आपके नेवी नंबर का एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो आपको समझाती हूँ। चलो स्टॉप। अगर 3 है और अगर आप 3 है तो 3 के आपके क्या होंगे? नेविन नंबर बोलता क्या है हमें? नेविन नंबर एक्चुअली में नेविन नंबर says that नेविन number is basically base 10 that is divisible by the sum of its digit. Okay? तो हम लोग अगर 3 को पकड़ते हैं, कहाँ गया वो बोर्ड? थ्री है तो 3 को अगर देखते हैं तो 3 के आपके जो होंगे, 3 को अगर छोड़ दें, 3 के आगे में क्या आपके 1 प्लस 2 है, राइट? तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगे? 3 हुआ। चलो ये बहुत लेमैन था, अच्छे से समझते हैं क्या है नेविन नंबर। इसका थ्रस्ट यहाँ पे है नेविन नंबर का, दैट फर्स्ट फ्यू Harshad or Navin numbers with base 10 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर इसको अगर लॉजिक के वाइज समझूं तो an integer number is a base 10 which is divisible by sum of its digit is said to be the Navin number. Sum of its digit, 1 का sum 1 है, 2 का sum 2 है, base 10.
ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो ठीक है, ठीक है। ये सारे आपके मतलब 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, उसका सम ऑफ द डिजिट भी 2 ही होगा करके, तो ये सब निविन नंबर है, ठीक है। बट 10 10 से डिविजिबल होगा, राइट? और वो उसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या है? वो सम ऑफ द डिजिट क्या है? 1। वो 1 से भी डिविजिबल होगा, तो वो निविन नंबर है। अब अगर आप 12 को ले लेते हैं, तो 12 भी कैसे निविन नंबर है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 12 इज व्हाट? 3। एंड 12 खुद से तो डिविजिबल होगा ही, राइट? बट वो 3 से भी डिविजिबल होगा, मीन्स 1 + 2 जो 12 है उससे भी डिविजिबल होगा। अगर मैं अब आपको समझाऊं, तो एक तरीके से मैं आपको व्हाइट बोर्ड में यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि अगर आप 12 लेते हो और अगर आप 12 को डिवाइड कर मतलब अगर आप 12 के सम ऑफ द डिजिट्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और 3 जो है उस 3 12 से भी डिविजिबल होगा। 3 बाय करोगे तो भी आंसर 4 आएगा, राइट? बल्कि अगर आप 11 को लेते हो तो 11 का सम ऑफ द डिजिट्स आपका क्या होगा? 11 आपका सम ऑफ द डिजिट्स आपका 2 होगा। और अगर आप 11 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका आंसर जो है वो मॉड में 0 नहीं आएगा, यू विल गेट अ रिमाइंडर एज 1। सो हेंस दैट इज नॉट इक्वल, मतलब इट इज नॉट डिविजिबल with the sum of the digits of its number, so hence it is not an even number. I hope the logic is clear के 3 1 से लेके आपका 9 तक तो सभी सम ऑफ द डिजिट्स भी 9 ही होगा, तो सभी डिविजिबल होंगे। फिर 10 का क्या है? 1 + 0 तो 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 भी रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा, राइट? 10 है, राइट? बल्कि 11 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ द डिजिट 2 होगा और 11 डिवाइडेड बाय 2 तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इट इज नॉट अ इवन नंबर। सो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसका सम ऑफ द डिजिट्स जो भी कैलकुलेट करेंगे उसको फिर ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। I hope the logic is clear. Then I guess you can write the answer for me. With that, we will end this today's class. Okay, that is the last program which we are going to do today, and after that we're going to end our class. दोनों गायब हो गए। I hope you guys are there in the class. Yes. Yeah, you understood the logic of the even number. Like we will extract the digits of the number, then we will check the divisibility with the original number, and then if it is equal to 0, then it is an even number, else it is not an even number. Okay. Okay. So now if that is clear, then please write the logic in it. निविन नंबर का लॉजिक समझ आया श्रीनुज कि नहीं क्लियर है? हमें सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर कैलकुलेट करने हैं,
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर कैलकुलेट करने के बाद हमें ओरिजिनल नंबर से उसको डिवाइड करना है। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो नीवी नंबर है, वरना वो नीवी नंबर नहीं है। ओके, तो अगर ये चीज समझ आया श्रीनुज, तो अगर ये चीज समझ आया तो हम इसका लॉजिक लिख सकते हैं। तो लिख के दीजिए, ये आज का लास्ट बुक है, ठीक है। और भी कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप अभी बोल सकते हो। यू वांट टू से समथिंग टू मी? यू फाइन राइट? तो सॉल्यूशन लिखिए, चलिए। मैम निविन नंबर का मिला? सर निविन, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? निविन नंबर का लॉजिक समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ हाँ, इजी है। इजी है तो ये तुम होमवर्क में करना, ठीक है। आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते पूछ हो, लेगा, हाँ। पूछ लेगा। ओके, हाँ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। बाय मैम।